just wait for this screen that's shared with you. Okay, can you see my screen? I think now it's shared. Okay, yeah, here. Okay, here. So this presentation actually it's an outside presentation, but I think some of the things which are still left, I think we can take reference from this presentation. Okay. So whatever data we define in our class known as attributes. Okay. So once again, let me open this ID. Okay. You see, I is equal to 10, j is equal to 16, f is equal to some number. These are known as attributes. And provides methods specifying the actions and object of the class can take. So we have these methods. We have these methods which can take some actions based on the logic. Okay? An object is an instance of the class. I have explained so many times. The person is a class. Alice and Bob are objects of the person class. Okay? So if I say, if I make one class with the name person, so Alice and Bob both are person. So we can say both are object of the person class. Anyway, we have seen these things so many times. Something new, we'll cover it. So class and objects. Okay. Now you see, how do we represent? You will see this kind of diagram in so many times in the books as well as in so many websites. If you refer online, you will see this kind of diagram. Okay. So you have a class diagram, what it is. This is a class name, this is a data, and this is the method or action. Okay. So automobile is a class name. Hello, These are sir. the data variables. Yes. Your voice is not clear, sir. Yes. Sir, Am I voice audible clear, now? not proper, sir. Okay, am I audible clear properly now? Just tell me, am I audible properly? Can you hear me properly? Okay, yes. Due to some okay. So can we use class modifiers with method? Yeah, I think we have tried this. Okay, method we can always try with this public, private, protected. Okay, I think we have seen in a public or protected class, uh, Abhishek. We have seen that, right? सर मैं कर रहा था तो नहीं हो रहा था. You can always write public. मेथड में तो सब में हो जाएगा. जस्ट वेट, इट्स गॉट हैंग. Anyway, let's see from here. I will show you once this gets normal. Okay. Okay. So this is called class diagram. Everyone, ये है class diagram, है ना? ऐसे तुम रिप्रेजेंट करोगे अगर पूछा जाए तो. देखो तुम्हारी बैच से नया सिलेबस आया GTO का.
उसके पहले ये सिलेबस में था, दिस वाज देयर इन योर सिलेबस क्लास डायग्राम, दिस वाज आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले था, अभी नहीं है, देखो है ना। तो पहले ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि क्लास का नाम ये है, डेटा ये है, और मेथड इसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसका मीनिंग ये नहीं कि हमें भूल जाना है, ये कहीं ना कहीं ये पढ़ने में आएगा, या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या किसी और सब्जेक्ट में ये पढ़ने में आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ये छोटा वाला इंट्रोडक्शन हो गया, इसको बोलते हैं क्लास डायग्राम। और इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, आई थिंक उसका तो इसमें इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। और उसको यूएमएल क्लास डायग्राम बोलते हैं। यूएमएल एक एक है ना, एक बहुत बड़ा सा एक कंसेप्ट है, यूनिफाइड मॉडलिंग ऑब्जेक्ट, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ओके, उसमें बहुत सारे डायग्राम, एक एक क्लास डायग्राम है, दूसरा चार्ट है, दूसरा सीक्वेंस डायग्राम है, मतलब बहुत सारे डायग्राम आता है, ईयर डायग्राम है, वो सब यूएमएल में आता है, ठीक है। Anyway, हाँ, तो मेथड डेफिनेशन वो सब भी हमने पढ़ लिया है। ओके, मेन मेथड, जस्ट यस। So main method एक अलग ही method है, a program, a class that has method named in execution begins in the main method, है ना, मैंने जो बताया वही है। देखो, जहां भी main method होगी वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। हाँ, मेन मेथड दो बार नहीं हो सकता, कंपलसरी मेन मेथड दो बार नहीं हो सकता। एक क्लास में एक बार आ गया, ठीक है, दूसरी बार मेन मेथड इस क्लास में नहीं होना चाहिए। सो फार नो एट्रीब्यूट्स, इंस्टेंस वेरिएबल, नो मेथड अदर देन मेथड नहीं, ठीक है। मतलब हमने तो बहुत सारे कुछ देखा है। देखो, ये रहा, ये एक क्लास है। मोबाइल से देख रहे हो तो पिन से जूम करके जूम कर सकते हो, लैपटॉप में फिर भी जूम हो जाएगा। देखो, ये एक क्लास है, पर्सन क्लास। इसमें देखो इंस्टेंस वेरिएबल है, ये मेथड है, तीन मेथड है, ठीक है, अलग अलग टाइप के। और एक पर्सन टेस्ट करके है, जिसमें मेन मेथड है, तो जिससे हम ये क्लास के ऑब्जेक्ट को और इंस्टेंस वेरिएबल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा एग्जांपल है। ओके, हाँ भाई, कैसे कंपाइल करना है ये भी हमने देख लिया। वन क्लास डेफिनेशन पर फाइल, फाइल नेम क्लास नेम आर द सेम। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, इससे एरर आती है। फाइल नेम और क्लास नेम दोनों सेम होना चाहिए विद डॉट जावा एक्सटेंशन, है ना। कंपाइलेशन होगा तो क्या होगा, बाइट कोड जनरेट होगा, तो वो किस में स्टोर होगा, डॉट क्लास फाइल, ये भी हम देख चुके हैं, मैंने ओपन भी किया था। और डॉट क्लास फाइल जो है वो जेवीएम में रन होगा, जेवीएम उसको रन करेगा। और मल्टीपल क्लास फाइल भी होता है, सेम डायरेक्टरी में भी हो सकता है। ओके, ये वॉइड और रिटर्न टाइप भी हम देख चुके हैं कि वॉइड में हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, रिटर्न में तो जो भी वेरिएबल होगा वो हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, मतलब जो भी डेटा टाइप होता है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अभी ये एक इम्पोर्टेंट, नेमिंग अ मेथड, मेथड को कैसे नाम दिया जाए। यूज अ वर्ब टू नेम अ मेथड, टू नेम मेथड्स। देखो, एक्शंस, मतलब गेट बैलेंस, डिपॉजिट, चेंज एड्रेस, देखो ये वर्ब आना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है मेथड के नाम में, पर ये है कि प्रोग्रामर ऐसा यूज करते हैं। इफ यू यूज वर्ब देन इट्स गुड। स्टार्ट अ मेथड नेम विद अ लोअर केस लेटर, मेथड का नाम है जो लोअर केस से हमें स्टार्ट करना है। देखो, ये एक नोटेशन था, क्लास का नाम जो था वो हम कैसे कर रहे थे, देखो कैपिटल लेटर से क्लास का नाम कम कर रहे थे, कैपिटल लेटर से, पर मेथड का नाम वो लोअर केस से स्टार्ट करेंगे, बाद में कैपिटल कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑल, ओके, सम ऑल। देखो, ये मेथड का नाम मैंने लिख लिया, बाद में कैपिटल आ सकता है, ओके, तो पहले स्मॉल आएगा फिर बाद में कैपिटल, ठीक है। Public method definition, syntax for void method, public void method name parameter statement.
ये तो एक्चुअली हमने देख लिया है रिटर्न टैग में क्या आना चाहिए। ठीक है, एट्रीब्यूट भी हम कैसे कर रहे थे, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स देखो। भाई समझ में आ रहा है एवरीवन, है ना? कोई ऐसा अभी तक कुछ है ना? नेटवर्क इश्यूज, वॉइस वीडियो इज ब्रेकिंग, सेम हियर। अभी भी मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है एवरीवन? माय वॉइस इज स्टिल No, ब्रेकिंग, sir. लेट मी नो। क्लियर आ रहा है ना? यस सर। ओके ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन ये था भाई, समझ में आ रहा है ना? ब्रेक हो रहा है वो सबका। यस यस। सर ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस। ब्रेक हो रहा है सर। अभी भी ब्रेक हो रहा है। ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes, let me change some settings.
Yes, hello. Am I audible now? Write down in chat box. Am Yes, sir. I Yes, sir. clearly? Okay. So let's start what I was telling. Example. Let me present screen once again. Okay. So yeah, we were seeing this topic, accessing attributes. ठीक है, देखो ये कौन से एट्रीब्यूट की बात कर रहा है? ये एट्रीब्यूट कि भाई ये क्लास के अंदर जो आई जे एफ बी जो भी किया है उसको कैसे एक्सेस करें। सबको पता ही है कि भाई इस क्लास के बाहर जाएगा तो कैसे हम एक्सेस करेंगे? कौन बोलेगा? इस क्लास के बाहर मुझे इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, मैं हाउ डू आई एक्सेस इट? कौन बोलेगा? सर पब्लिक कर देंगे। नहीं भाई, अरे यार ऑब्जेक्ट बना के। तो सर एक मेथड बनाएंगे। अरे सिंपल है यार, ऑब्जेक्ट बना के मैं करूंगा ना। देखो फर्स्ट प्रो क्या ऑब्जेक्ट बना के मैं आई को एक्सेस कर पाऊंगा ना। ये क्लास के बाहर की बात कर रहा था मैं। फर्स्ट प्रो है ना, यहाँ पे खत्म हो जाता है। नहीं मेथड यहाँ करना। तो अभी सेकंड प्रो में अगर उस आई को मैं एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल है, मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के कर पाऊंगा। ठीक है ना? देखो फर्स्ट प्रो, हाँ इसकी भाई प्रैक्टिस होगी तभी समझ में आ जाएगा भाई। कोई बात नहीं, एफपी में नाम रखता हूँ ऑब्जेक्ट का, न्यू फर्स्ट प्रो। देखो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ऑफ पी डॉट मैं करता हूँ, देखो ये सभी वेरिएबल में अवेलेबल होता है। आई अभी तो हाँ डिफॉल्ट है, चलेगा मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेस पे ध्यान नहीं दे रहा, पर ये मैं ऐसा एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाहर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसका क्या लिखा है? बट अगर क्लास के अंदर ही एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? क्लास के अंदर ही एक्सेस करना मैं क्या करूंगा? देखो एट्रीब्यूट नेम बोला है और दिस डॉट एट्रीब्यूट नेम, दो तरीके से। जैसे कि ये देखो ये आई है, मुझे आई में ही वैल्यू 10 है तो 10 की जगह पे मुझे 50 डालना है। मैं ऐसा कर दिया, 50 कर दिया, चलो चलेगा। पर देखो ये अभी मुझे क्या बोल रहा है? एरर आई एक्सपेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, अभी मुझे आई के अंदर ही कुछ वैल्यू डालना है तो मैं क्या करूंगा? दिस कीवर्ड है ना, दिस डॉट आई। एक्चुअली मैं करूंगा क्लास मेथड के अंदर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक्सेस करूंगा, यहाँ पर आई इज इक्वल टू 50 किया। देखो कोई एरर नहीं है। इस तरीके से अगर क्लास के अंदर है तो मैं क्या करता हूँ? डायरेक्टली नाम लिखूंगा और मैं क्या करूंगा? दिस कीवर्ड। और देखो दिस डॉट किया तो देखो बहुत सारा ऑप्शन आ गया। भाई दिस का मीनिंग क्या है? दिस कीवर्ड का मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि भाई इस क्लास का वेरिएबल। जिस कीवर्ड का भाई तुम लोग बोलोगे भाई इसका सर यूज क्या है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। हो सकता है कई बार ऐसा होगा कि हम दूसरे क्लास का भी वैल्यू यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो अभी हमें बोलना है कि नहीं इस क्लास का ही वैल्यू एक्सेस करो, तो अभी हम ये कीवर्ड यूज करेंगे दिस डॉट है। अभी देखो दिस डॉट अमोग, देखो ये मेथड भी मुझे बोल रहा है मुझे इस क्लास का ही मेथड यूज करना है, दूसरे क्लास का मेथड यूज करना है। कई बार ऐसा होगा कि दूसरे क्लास का भी मेथड हम यहाँ एक्सेस कर रहे होंगे, तो हम दिस कीवर्ड यूज करके हम बोलेंगे भाई नहीं मुझे इस क्लास का ही मेथड यूज करना है ना। ऐसा सीनियर हो सकता है। देखो मैंने पहले बताया सम है और यहाँ पे भी सम है, तो मैं कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ऐसे बढ़ा सकता हूँ कि भाई मैं क्या करूंगा? इसका ऑब्जेक्ट बना दूंगा सेकंड फ्लोर का, और उसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, एसपी नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट का, न्यू सेकंड ब्लॉक सेमीकोलन। अभी मैं क्या करता? एसपी डॉट सम कौन सी मेथड इन्वोक होगी? मुझे सिंपल है सम वाली, ये जो यहाँ पे ये मेथड इन्वोक होगी। पर अभी मुझे क्या करना है? इस क्लास की मेथड इन्वोक करनी है, तो मैं क्या करूंगा? इस डॉट करके मैं सम ही कॉल करूंगा। देखो पता चला अभी।
हमें कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन की जगह पे कोडिंग में भी एरर ना है। दिस डॉट सम मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, इस क्लास की सम मेथड को तुम अभी यूज करो, ऐसा बोला। ये तो कॉल हो गया, उसके बाद कॉल, तो ये दिस की और इसके लिए उसी क्लास का कोई भी एक्सेस वेरिएबल या फिर मेथड एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये हो गया एक्सेस मेथड। हाँ भाई, इसका ये देखो एग्जांपल दिया है, तो हमने भी ले लिया था एग्जांपल, है ना। देखो यहाँ पे एक है दिस डॉट पॉपुलेशन, मतलब ये वेरिएबल जो है ये इसी क्लास का होगा कुछ। और स्पीसीज टू डॉट पॉपुलेशन, स्पीसीज टू डॉट पॉपुलेशन मतलब क्या है, स्पीसीज टू करके कोई देखो ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, स्पीसीज फर्स्ट ट्राई डेमो करके क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना है। देखो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत यहाँ पे थोड़ा बढ़ रहा है समझने के लिए, पर स्पीसीज डॉट पॉपुलेशन उसका वेरिएबल है, किसका, इस क्लास का। तो उसका और इसका हम समेशन कर रहे हैं, है ना। तो क्लियरली मेंशन हो, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम ये से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये टोटल हो गया, मैं ये इंटीजर में रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये लोकल वेरिएबल हमें तो पता ही है, लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, ठीक है। ब्लॉक सिंपल है, इसको ब्लॉक बोलते हैं। देखो ये ब्लॉक हो गया क्लास का, यहाँ तक है, ये ब्लॉक हो गया यहाँ तक, ठीक है। देखो ये पीपीटी का रेफर करने का एक ही मकसद है, क्योंकि जो बीच में रह जाता है वो मैं क्लियर कर सकता हूँ, बाद में नया टॉपिक पे आगे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये बंद करके स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल, जहाँ तक स्कोप होगा तहाँ तक लोकल वेरिएबल होगा। जैसे कि देखो इंटीजर आई है, यहाँ डिक्लेयर किया, तो उसका स्कोप कहाँ पे है, ये फुल लूप का स्कोप क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक है। इंटीजर आई यहाँ तक ही वैलिड है, उसके बाद आई और वाई एक्सेसिबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आई और वाई एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई सबको, चैट बॉक्स में लिख लेना। ऑडिबल भी सही तरीके से है ना, ठीक है। ठीक है, फोर लूप में जो वेरिएबल है उसका भाई क्या है, देखो अगर वेरिएबल जो है आउटसाइड फोर लूप में भी अगर फोर लूप में डिक्लेयर कर दो ठीक है, उसका स्कोप इधर ही तक ही होगा। पर फोर लूप के बाहर एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वेरिएबल एन जो है वो स्टिल एग्जिस्ट व्हेन द फोर स्टेटमेंट एंड्स। देखो इसका स्कोप बढ़ जाता है, इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक रहेगा, मतलब जहां तक इसके ऊपर वाला जो स्कोप एंड नहीं होगा तब तक इसका स्कोप रहेगा, ठीक है। पर अगर फोर लूप या इफ लूप में इंटीजर में डिक्लेयर किया तो एन की वैल्यू वहां तक ही सीमित रहेगी, उसके बाद नहीं जाएगा, ठीक है। हमने देखो ये देखो कीवर्ड याद रखना है, आपको पता ही होगा, पासिंग वैल्यूज टू अ मेथड यूजिंग पैरामीटर्स। देखो दिखने में शायद ऐसा होता है कि ओ ये क्या हो गया, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पास कर रहे हैं मेथड को विद पैरामीटर्स। देखो हमने ये कर ही रहे हैं, देखो ये हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, तो हम क्या कैसे कॉल कर रहे हैं, देखो बस ये वैल्यू पास कर रहे हैं मेथड को, ये वैल्यू पास की, ठीक है। 10 और 32, तो ये 10 32 यहाँ पे आ गया, और जो भी हम यहाँ पे करना a प्लस बी और जो भी तो यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। ठीक है, फॉर्मल वर्सेस एक्चुअल पैरामीटर। अच्छा देखो स्कोप ऑफ फॉर्मल पैरामीटर, देखो स्कोप ऑफ फॉर्मल पैरामीटर, ये देखो ये यहाँ पे जो हम डिफाइन कर रहे हैं इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ये देखो ये अलग नाम है इसका, इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, ये बिगिन ऑफ द मेथड, मेथड जहाँ स्टार्ट होता है उससे होता है, और एंड कहाँ पे होता है, एंड ऑफ द मेथड। ये जो फॉर्मल वेरिएबल है, देखो यहाँ पे तो ए एंड बी यहाँ पे उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। इंटीजर है वो एक फॉर्मल पैरामीटर, तो ए का यूज अंदर कहीं भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो पैरामीटर पासिंग का भी एग्जांपल है, कुछ आएगा तो उसको
और 2 से मल्टीप्लाई करके मैं रिटर्न करूंगा, इंटीजर में जाएगा और मैं किसी को असाइन करूंगा, ठीक है। वेरिएबल वाला भी हमने देख लिया है, स्टार्टिंग में देखे हैं, ठीक है। अच्छा, पास बाय वैल्यूज, पास बाय वैल्यू का और ठीक है, ये तो हमने किया, ये पास बाय वैल्यू वाला, ठीक है। पास बाय वैल्यू में क्या था कि नम में 20 था और 20 से हमने क्या किया है, माई क्लास डॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर मेथड इन्वोक किया है और उसमें हमने वैल्यू पास की, देखो 10 पास की और 10 यहाँ पे सेट हो जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 की वैल्यू यहाँ पे आएगी। और देखो इस मेथड में एक ही आर्ग्यूमेंट है, तो ये आर्ग्यूमेंट मैच हो गया, तो ये नम में 10 असाइन हो जाएगा। फिर नम मल्टीप्लाई बाय नम, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आएगा, 100 और 100 रिटर्न कर देगा, ठीक है। और एस क्यू में 100 आएगा और वो प्रिंट करेगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स टू मेथड, आर्ग्यूमेंट कैसे करें, देखो यहाँ पे क्या है, पास बाय वैल्यू में और एक एग्जांपल है, ये 10 मैं यहाँ पे 10 पास कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल लिख रहा हूँ, और यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से वैल्यू दे रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी इक्वेशन कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू जो है उसको +5 मॉड्यूलो 2 ये आएगा, यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू फाइंड करेगी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करके फिर रिटर्न करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, ये तो हमने देखा ही था, इंटीजर n1 n2 डबल कैरेक्टर, तो इसके सिग्नेचर हो गई, ये मेथड की सिग्नेचर बोलते हैं इसको, इसका एग्जांपल है, ठीक है। अभी ये देखो, ये एक डेफिनेशन, अभी देखो क्लास का कोई पूछे तो भाई कैसे लिखना है, तो भाई इस तरीके से लिखना है, पब्लिक क्लास, क्लास में पहले इंस्टेंस वेरिएबल आएंगे सिंपल, फिर देखो कमेंट लाइन वाला कंसीडर नहीं करेगा कंपाइलर, इसलिए ये कमेंट है, और ये अपना मेथड है, कोई भी एक मेथड ले लो, तो पब्लिक रिटर्न टाइप मेथड नेम और टाइप पैरामीटर स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है, अभी ये देखो क्लास, एक क्लास के अंदर क्या होता है, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है और एक मेथड होता है, ठीक है। मेथड में भी क्या होता है, दो होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर डिक्लेयर इन मेथड हेडिंग और लोकल वेरिएबल तो डिक्लेयर इन मेथड बॉडी, ये दोनों ख्याल रखना है। ये कीवर्ड एक्चुअली क्या है कि कोडिंग करने के टाइम ये कीवर्ड अगर याद रहे और बुक्स में भी अगर पढ़ोगे तो ये कीवर्ड बार बार आएंगे। फॉर्मल पैरामीटर क्या बोलते हैं, देखो क्लास मेथड जो होती है उसके हेडिंग में अगर डिफाइन करें उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ये देखो ये मेथड है, उसके देखो हेडिंग में मैंने एक डिफाइन कर लिया, उसको बोलूंगा मैं फॉर्मल पैरामीटर। पर लोकल वेरिएबल कहाँ मैं बोलूंगा, मेथड की बॉडी में अगर डिक्लेयर करें, मेथड की बॉडी में जैसे कि यहाँ पे तो मैंने किया है टीचर आई इज इक्वल टू टीचर h इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, ये लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर और लोकल वेरिएबल मेथड में दो टाइप के, ठीक है। ठीक है, तो भाई इसका भाई आंसर देना है कि कोई भाई लोकल और फॉर्मल भाई क्या है, ठीक है, वो तो अभी कोई एक्सेस नहीं करता। हाँ, एनकैप्सुलेशन वाला भी हमने किया था, इंफॉर्मेशन हाइडिंग वाला कैसे करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट से इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या करते हैं। अच्छा देखो अभी ये एक डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या करता है, प्रोटेक्ट्स डेटा इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, डू नॉट अलाउ डायरेक्ट एक्सेस। इंफॉर्मेशन हाइडिंग हम कैसे करेंगे,
तो पब्लिक प्रायोरिटी जो है सक्सेस उसको करेंगे, ठीक है। एनकैप्सुलेशन क्या है? यूज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड बोथ डेटा आइटम्स एंड मेथड टू एक्ट ऑन द डेटा। तो एनकैप्सुलेशन मतलब हम क्या करेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट में ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर लगा देंगे और इससे हमारे रेस्ट्रिक्शन मिल जाएगा, तो हम ऐसा एनकैप्सुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और तो एनकैप्सुलेशन का भी ये भी नहीं है कि एनकैप्सुलेशन, देखो ये फर्स्ट प्रोग्राम क्लास है, इसमें ये मैंने एक्सेस स्पेसिफायर रखी है और मेथड रखी है। देखो एक फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर कुछ वेरिएबल और कुछ मेथड है, तो उसको मैंने एनकैप्सुलेट कर दिया, एक कैप्सूल में रख दिया। दो मेथड है जो मेन मेथड भी कंसीडर कर। देखो सेकंड प्रोग्राम है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं पर एक मेथड है, इसको भी मैंने ये मेथड को कैप्सूल में रख दिया है, सेकंड प्रोग्राम में कैप्सूल में रख दिया, उसको बोलता हूँ एनकैप्सुलेशन, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट हमने देख लिया है, तो यूज करना है, ठीक है। अभी ये देखो एक्सेसर एंड म्यूटेटर, हाँ ऐसा कुछ एग्जाम अभी तक आया नहीं है, पर जान लो और पता है तो अच्छा, ठीक है। तो एक्सेसर मेथड क्या है? पब्लिक मेथड दैट अलाउज एट्रीब्यूट टू बी रीड। म्यूटेटर मेथड क्या है? पब्लिक मेथड दैट अलाउज एट्रीब्यूट टू बी मॉडिफाइड मच बेटर देन मेकिंग इंस्टेंस वेरिएबल पब्लिक, ठीक है। देखो सिंपल है, ये सम मेथड है, तो मैं बस ये एक यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ए बी का तो मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, पर मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ कि देखो एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, दिस डॉट आई इज इक्वल टू 50, आई में मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, तो इसको म्यूटेटर मेथड बोलते हैं। पर अगर एक्सेसर है तो देखो यहाँ पे कोई मैं मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं बस जो भी वैल्यू है वही दे रहा हूँ, मतलब कोई एक्सेस ही कर रहा हूँ, मैं रीड ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं एक्सेसर मेथड, ठीक है। तो पहले एग्जांपल है, नॉट डू, ठीक है। ये देखो कमेंट वाला है, सिंपल है। कमेंट्स क्या होती है? कमेंट्स सबको बताने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने एक कमेंट्स लिखा है और ये प्रोग्राम मैंने परफॉर्म किया है कमेंट्स लिख, ठीक है। तो एफिशिएंट स्टैंडर्ड वे टू टेल व्हाट अ मेथड डज, मेथड क्या करता है? द प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन, ठीक है। देखो ये कमेंट में कैसे दे रहा हूँ, प्री कंडीशन मतलब यर इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, और पोस्ट कंडीशन रिटर्न्स अ प्रोजेक्ट पॉपुलेशन आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। मतलब ये क्या है, क्या ये एक्चुअली कंडीशन है, ये मेरा लॉजिक का पार्ट है। ये ऐसे कमेंट में मैं दे दूंगा, ऐसा कमेंट में मैं दे दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा और मैं बोलूंगा कि ऐसा प्रोग्राम करो। तो यार क्या आना चाहिए? नॉन नेगेटिव नंबर है, ऑब्वियसली यार्स तो नॉन नेगेटिव नहीं है, तो -20 21 तो नहीं होगा, तो ये प्री कंडीशन है, तो मुझे ऐसा नंबर अलाउ नहीं करना है, मेरा प्रोग्राम में ना ऐसा होना चाहिए। दूसरा क्या है? पोस्ट कंडीशन क्या है? मतलब ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न्स अ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो है आफ्टर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब ये सा मुझे आउटपुट चाहिए, इस काइंड ऑफ आउटपुट आई विल पर। ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मुझे इसका ध्यान रखना है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद ऐसी कंडीशन में जाए, ऐसा ही मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यूज हो या ऐसे ही टर्म्स मिले, कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखो असर्शन, इसका हम बाद में रखेंगे, इसका एक पूरा वाला देखेंगे, एक जब एक पूरे क्लास लेंगे। असर्शन मतलब टेस्टिंग, टेस्टिंग कैसे करें इसको? टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। टेस्टिंग मतलब एक पूरा का पूरा जॉब अलग से अवेलेबल है, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, है ना। मार्केट में जाओगे तो सॉफ्टवेयर टेस्टर वाला एक पूरा का पूरा अलग सेगमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि ये मैंने मेथड लिखा, तो मेथड सही तरीके से काम कर रहा है, तो मुझे क्या पूरा प्रोग्राम नहीं रन करना है, मुझे एक मेथड ही टेस्ट करना है कि ये मेथड मेरे सही चल रही है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट क्लास बताऊंगा। हाँ इसमें टेस्ट क्लास हो सकता है, देखो ये टेस्ट पैकेज करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टेस्ट पैकेज में मैं भी ये ऐसा पैकेज बना के टेस्ट क्लास कर सकता हूँ और उसमें वो असेट मेथड आएगी,
आई थिंक विल सी लेटर ऑन, हमें ना तो ये जे यूनिट वाला टेस्ट वाला सिलेबस में तो नहीं है ऐसा कुछ, तो मैं आपको दिखा दूंगा भाई टेस्ट कैसे करते हैं, ऐसा भी ऐसे टेस्टिंग भी ऐसे भी होता है, ठीक है। तो हर बार मुझे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, हर बार मेरी मेमोरी कंजप्शन हो, या कई बार ऐसा होता है कि पूरा प्रोग्राम मेरे पास नहीं होता। मैंने बोला कंपनी में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है और एक डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे, ये फंक्शन तुम डेवलप करो, ये फंक्शन काम कर रहा नहीं कर रहा क्या होगा, ये लोग मुझे ये दे देंगे प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन, मतलब मुझे देंगे इनपुट क्या आ रहा है आउटपुट क्या आना चाहिए, ये लोग मुझे दे देंगे, उसे ऐसा मुझे डेवलप करना है। अगर मेरे पास इतना ही है तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा कि ये रहता है एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो मैं जे यूनिट टेस्ट से इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो उसका एक पूरा अलग से सेशन हम देख लेंगे, ठीक है। Too much issue network, so I leave meeting enrollment number. फिर सबको समझ में आ रहा है भाई, ये सुनो लिख लो, सुना भी दे रहा है ना ठीक तरीके से। Am I audible properly? Just write down yes or no. Okay. गौरव कुमार अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? Yes, Gaurav Kumar, am I audible properly to you? Sometimes voice is breaking, I don't know, but why today it's happening? Uh, anyway, I will speak very slowly, I think. So we'll do this assertion kind of session next upcoming session. Okay. Encapsulation वाला थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। Encapsulation is what? Is a process of hiding details of class definition that are not needed to use objects of the class. भाई ऑब्जेक्ट को जानने की जरूरत नहीं है, ऐसी डिटेल ऐसी चीज को हम हाइड करोगे उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है। इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। एनकैप्सुलेशन क्या है? इंफॉर्मेशन हाइडिंग का ही एक अलग फॉर्म है, ठीक है। तो उसके टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला है यूजर इंटरफेस, second है implementation, all the members of the class defined this way said to be well encapsulated, ठीक है। इस तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो क्लास को बोल सकते हैं एनकैप्सुलेटेड। देखो ये क्या है, क्लास को चाहिए वो ऐसे वेरिएबल मेथड कर लो, और इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि उसकी मेथड है उसमें लॉजिक भी हम लिख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेटेड, ठीक है। देखते हैं तो यूजर इंटरफेस में क्या क्या आएगा। देखो यूजर इंटरफेस में हेडिंग ऑफ द पब्लिक मेथड, ये पब्लिक मेथड है, ये पब्लिक मेथड है, तो उसका मैंने हेडिंग लिख लिया, इंटीजर सम, ये आएगा एनकैप्सुलेशन है। फर्स्ट वन डिफाइन पब्लिक कांस्टेंट, अगर मैं कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो पब्लिक कांस्टेंट आएगा, जैसे कि और कांस्टेंट वाला कांसेप्ट हमने नहीं देखा, पर अब वैसे भी अगर एक पब्लिक इंटीजर आई इज इक्वल टू दैट्स 40, ठीक है। It's telling the programmer how to use the public method and define public constants. देखो कमेंट चाहिए मुझे, use comment को क्या है, use when you want to use, तो ये मैंने कमेंट भी लिख लिया, इसका भी कमेंट आएगी use when you have large values,
ये हो गया एनकैप्सुलेटेड, वेरी वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, private defined constants and definition of public and private methods. ठीक है, Java code contains both the user interface and implementation. देखो इसका एग्जांपल यहाँ, ये वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास है, इसमें देखो क्या है, प्राइवेट करता हूँ, प्राइवेट इंटीजर j इज इक्वल टू 30, तो ये एक मेरा हो गया एनकैप्सुलेटेड, प्राइवेट भी हो गया, पब्लिक भी हो गया। ठीक है, प्राइवेट है और बॉडीज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंड मेथड डेफिनेशन, देखो ये मेथड का डेफिनेशन दी है यहाँ पर। ये एक गाइडलाइन थी, जो भी पहले बोला वो गाइडलाइन थी कि ऐसा तुम करो एनकैप्सुलेट करने के लिए। ठीक है, precede the class definition with a comment that shapes the programmer view of the class। जो भी लिखो एक कमेंट में लिखो कि ये क्लास एक्चुअली क्या कर रहा है। This class will perform addition। ठीक है, declare all attributes instance variable in the class private, provide appropriate public access and unmutated method। ठीक है, हाँ ये पब्लिक है, एक्चुअली ये जो है वो प्राइवेट करने के बोला क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू, ये एक रूल है कि अगर जो भी वेरिएबल लिखो तो प्राइवेट होना चाहिए। ठीक है, वी आर सपोज टू एक्सेस दिस आउटसाइड। हाँ इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, हमें सेट मेथड ऐड करनी है, सेट मेथड जो हमने लास्ट टाइम देखा लास्ट लेक्चर में। पर सेट मेथड से अगर हम चेंज कर पा रहे हैं देन इसका भी प्राइवेट करने का कोई जरूरत नहीं, वो डिजाइनिंग फ्लो है। ठीक है, पब्लिक मेथड भी करना है तो प्रोग्राम यूज कर पाए, पब्लिक मेथड से कमेंट भी करना है तो हमें पता चले कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, combine data and methods into single entity, hiding the details of the implementation। इसका मीनिंग क्या है, हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन? देखो ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है सम वाला, तो इसकी इंफॉर्मेशन हाइड करता है, मतलब कि हमें पता नहीं चला, हमें बस क्या करना है, इसको डायरेक्टली कॉल करना है, फीचर्स टू कॉल दिस सम मेथड। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ सिंपल एनकैप्सुलेशन। ठीक है, यूनिट क्लास डायग्राम हमें अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आई थिंक विल कीप अप टू हियर। ये जो बाकी वाला है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और जो भी इनहेरिटेंस वाला जो डेप्थ में देखना है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ी बहुत चीजें थी जो बाकी रह गई थी क्लास ऑब्जेक्ट में, वो मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी ये कवर कर लेंगे जो भी चीज बाकी रह गई। और तो ये मैं डायग्राम थोड़ा वाला देख लेंगे। ठीक है ना, एनी डाउट एनीथिंग वांट टू से? हाँ भाई, ये एक अभिषेक बोल रहा था कुछ स्ट्रिंग वाले में कुछ प्रॉब्लम है। अभिषेक सर आप कॉलेज में ही हो क्या? हाँ जी, तो सर आ सकते हैं। कल आना, आज पूरा बिजी है, मतलब अभी लेक्चर खत्म होने के बाद 3 to 4 वाइवा है एंड अब 5th सेमेस्टर वालों का। ठीक है सर, तो कल कितने बजे आ जाऊं? कल दोपहर को आ जाना 2 बजे के बाद। ठीक है सर, ठीक है, इसलिए कि सर डाउट है थोड़ा, कोई ऑनलाइन बात, पूछने में दिक्कत होगी। दोपहर को आ जाना। ठीक है, ठीक कल। है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई डाउट एनीथिंग यू वांट टू से? हाँ भाई, बहुत सारे लोग भी मत आ जाना। Anyway, so I think we'll keep up to here. Again, जो भी थोड़ा बहुत बाकी है क्लास और ऑब्जेक्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा कवर करेंगे। बाकी और बाकी सब टॉपिक है वो हम
start करने के next lecture. Okay, fine. So everyone just write down your number in chat box. Yes, thank you everyone. Udit, Pankaj. Thank you. I think everyone has written the number. Let me stop presentation. Verma. Let me stop recording also. Thank you everyone. We'll meet next lecture. Okay?